Hello everyone, welcome to the Radical classes. Learn, fly, and explore. An online ground school for your every aviation-related queries and aviation-related studies. And welcome to our next chapter in our meteorology series. So, friends, I am Rahul Sharma, commercial pilot and your aviation educator. So, today जो हम cover करने जा रहे हैं friends, that is our meteorological service for aviation. Okay, ज़्यादा बड़ा chapter नहीं है. So इसलिए cover हो जाएगा. So we will having quick review on this chapter and जो उसमें important markers हो गए, important points हो गए, I will definitely tell you and we will be discussing the met services जो meteorological services है वो जो हमारी pilots को aviators को provide की जाती है during their flight operations कैसे different हमारी met offices रहते हैं. Every aspect will be covered in this slide. Okay, and I will be also be marking the important PYQs and star pointers which will be necessary कि आप एक बार उसको revise करिए especially from this chapter. Okay, so let's begin our session, guys. Welcome. Okay, friends. So let's start. Here is the first slide in our chapter. So first we have meteorological service for aviations. It come under our ICAO annexure 3. Okay. Where we find met services for our aviation. Okay, the first organization which will be covering in this is WMO, that is World Met Organization. Okay, it was founded on 23rd March 1950 and is agency of UN. Okay, 193 members है इसके and 6 regions में divided है. Okay, it facilitate worldwide cooperation exchange of weather information की जो worldwide exchange होती है उसमें ये cooperate करती है, worldwide cooperation रहती है इसकी. The World Meteor Organization maintain the worldwide corporations in this and headquarter इसका कहाँ पर है? That is in Geneva and Switzerland. Okay, so ये था brief overview of World Meteor Office organization. Okay, so let's move on to our next slide. Okay, friends, so let's study now the important forecast centers which we have in our listing. We first have our World Area Forecast Center. Okay, so the important pointer here note is that it has 19 regional offices, you need to remember it, and one is at New Delhi too. Okay, हमारे इंडिया में भी इसका एक सेंटर है वर्ल्ड एरिया फोरकास्ट सेंटर का. हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लंदन एंड वॉशिंगटन. ओके, मेन पर्पस क्या है? टू प्रिपेयर ऑपरेशनल मेट फोरकास्ट रिक्वायर्ड फॉर जो हमारी फ्लाइट प्लानिंग के लिए है, जो हमारा ऑपरेशनल मेट फोरकास्ट जो फ्लाइट ऑपरेशन होते हैं especially in regards of upper winds, temperature, upper wind humidity, tropopause, turbulence, icing, wind speed and cumulus nimbus जो हमारे cloud होते हैं for the safe operation of the flight and put our so that we don't get stuck and affected by these serious aviation hazards. We have our World Area Forecast Center. Okay, and it is used for our efficient, economical and safe flight. Okay, so ये आपने याद रखना है इसमें. We have 19 regional office of World Area Forecast Center. Okay, so let's move on to our next slide. Okay, friends. So next we have an important meteorological agency of our nation, of our India. That is your IMD. So it's come under Ministry of Earth Science and it is that department which is linked for all the weather forecast and meteorological services in our India. Okay, so that is IMD, Indian Meteorological Department. Okay, it has agency under Ministry of Earth Science, right? 6 इसके रीजनल ऑफिस है, रिमेम्बर इट. कितने हमारे रीजनल ऑफिस है? 6. ओके, कहाँ कहाँ है ये? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी एंड नागपुर. ओके, एंड अंडर दिस, अब आप नोट करिएगा, यू नीड टू रिमेम्बर दिस, अंडर दिस वी हैव आवर मेट वॉच ऑफिसेस. ओके, मेट्रोलॉजिकल वॉच ऑफिस है. दे आर 4 लोकेशन. इनकी कितनी लोकेशन है? 4 लोकेशन. ये भी आपने याद रखना है. कोलकाता, दिल्ली, मुंबई एंड आवर चेन्नई. ओके, चेन्नई. इट फैसिलिटेट द मेट्रोलॉजिकल नीड्स ऑफ एन फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन की जो रहती है हमारी मेट्रोलॉजिकल नीड्स, उसको ये मीट करती है. ओके, एंड जो हमारे सिगमेट है, दे इशू सिगमेट. सिगमेट आर द सिग्निफिकेंट जो मेटार्स होते हैं जितने भी हमने सीरिया एविएशन हजार्ड के, तो जो मेटार रिपोर्ट विच विल बी प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट, जो सिग्निफिकेंट होगा जिसका, फॉर एग्जांपल आइसिंग है,
फॉर एग्जांपल सीवियर कोई टर्बुलेंस एक्टिविटी है होने वाली है या कोई थंडरस्टॉर्म आने वाला है, तो वी नीड टू इमीडिएट जो हमारे एविएटर्स है, हमारे जो फ्लाइट ऑपरेशंस में एयरक्राफ्ट पर्सनल्स है, उनको हमारे को इन्फॉर्म करना होता है। तो इससे क्या इशू होता है, जो सिगमेट है दैट इज इशू बाय दिस मेट वॉच ऑफिस, तो दे हैव वेरी important and crucial roles in our forecasting in our meteorology department. Okay, so that's WMO, correction MW. Okay, so 4 लोकेशन है, ये आपने याद रखना है इसकी, है ना। और नीड ऑफ एन FIR इसमें फैसिलिटेट करेगी, एंड इशू सिगमेट इज लिंक टू आवर MWO। ओके, मेट वॉच ऑफिसर्स। ओके, ये आपने इसमें रिमेंबर करना है, राइट फ्रेंड्स। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, राइट फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट जो हमारे टू इम्पोर्टेंट मेट ऑफिसेस हैं which are linked to our meteorology department, that is our AMOs, the aerodrome met offices, and next is our aeronautical met stations। तो इनमें आपको इनकी कितनी किन किन लोकेशंस में है, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द रूल्स एंड कितने टाइम पहले हमें यहाँ पर अपना FPL जो हमारा फ्लाइट प्लान है, वी नीड टू फाइल ऑन AMOs एरोड्रोम मेट ऑफिसेज में और हमारे एरोनॉटिकल मेट स्टेशन में। ओके, सो दे इट विल बी कवरिंग इन और ये जो स्लाइड है इसमें हम इसको कवर करेंगे। ओके, सो सबसे पहले आप समझिए, दे आर प्रेजेंट एट 14 लोकेशन। ओके, जो हमारा एरोड्रोम मेट ऑफिस है वो हमारी 14 लोकेशन में, एंड यू नीड टू रिमेंबर इट। ओके, ये DGC इंपॉर्टेंट है, दे समटाइम पूछ ही लेते हैं आपसे कि AMOs कितने लोकेशन में है, तो यू नीड टू रिमेंबर 14 लोकेशंस है इन इंडिया, एंड ऑल ओवर जितने भी हमारे मैक्सिमम जितने हमारे इंटरनेशनल है, नेशनल एरोड्रोम्स है, वहाँ पर हमारे एरोड्रोम मेट ऑफिस है। यू कैन रिलेट इट, जब हमारे एरोड्रोम नाम आ गया तो डेफिनेटली विल बी लिंक टू द एरोड्रोम स्टेशन। ओके, so 14 location in India में mostly in our major international and national airports में you will finding your aerodrome met offices। Okay, and they maintain 24 hour weather watch, 24 आवर की वेदर वॉच मेंटेन करेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। एंड इशू क्या करेंगे, मेट फोरकास्ट, टैफ जो हमारा टर्मिनल एरोड्रोम फोरकास्ट है, एटिस होता है हमारा, हम ब्रॉडकास्टिंग होती है एरोड्रोम में हमारी, एंड रडार एंड सैटेलाइट पिक्चर्स जो हमने अर्लियर अपने चैप्टर में कवर करी। तो एवरीथिंग जो भी रिलेटेड है हमारा एरोड्रोम के बारे में है फॉर द मेट्रोलॉजी एंड फोरकास्टिंग, जो वेदर पैटर्न है स्टडी करने का, दैट विल बी डन बाय योर एरोड्रोम मेट ऑफिसेस। ओके, 24 आवर्स की वेदर वॉच रहती है इसकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने का। And met forecasts, TAF, ATIS, and satellite pictures, radar satellite pictures, everything will be maintained and issued by this AMO, okay, aerodrome met offices। So अब इसमें ये important है, ये भी आपने याद रखना है, to prepare an FPL met for जो आपको अपना फ्लाइट प्लान है वो कितने टाइम पहले इनको सबमिट करना है। तो अभी आप जानिए, मिनिमम प्रायर नोटिस टू गिवन 3 आवर्स फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट। अगर आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट, इफ़ यू आर ऑपरेटिंग ए डोमेस्टिक फ्लाइट, तो आपको 3 आवर्स पहले इनको इन्फॉर्म करना होगा, एंड 12 आवर्स पहले आपको इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए हमारे एरोड्रोम मेट ऑफिस को इन्फॉर्म करना होगा, राइट फ्रेंड्स। सो ये दिस इज इम्पोर्टेंट, DGC इम्पोर्टेंट है ये, इसको आपको याद करना पड़ेगा, स्पेशली इन दिस चैप्टर रिस्पेक्टिव। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि FPL आपको कितने टाइम पहले फाइल करना होता है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव और एरोनॉटिकल मैच स्टेशंस, जब हम दे आल्सो कवर फोरकास्ट फॉर एसोसिएटेड AMS के लिए भी ये कवर कर लेता है फोरकास्ट, ये भी याद रखना है जो हम अभी स्टडी करेंगे। AMS जो इसके मतलब आप समझिए इसके ये सुपरविजन में, मतलब इसके सबॉर्डिनेट में ही मानिया पाता है, एंड ज़्यादा इसके स्टेशन रहते हैं हमारे इंडिया में एज रिस्पेक्ट टू आवर AMOs। तो समटाइम्स AMOs कैन कवर AMS जो एरोनॉटिकल मेट स्टेशन जो उनका इंफॉर्मेशन भी यही कवर कर लेता है। देयर इज सम टाइप ऑफ वर्कलोड कुछ है तो एंड्रोमेट ऑफिस कैन हैंडल इट आउट। ओके, so they are present at 54 locations in India, 54 locations। Okay friends, so they take current weather observations, जो current weather की observation, and provide aeronautical forecast obtained for associated AMOs during their watch hours। अब क्या काम करेगा आप ये समझिए, आप they take current weather observation, करंट वेदर ऑब्जर्वेशन तो लेगा। ओके, अब अच्छे से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, एंड प्रोवाइड एरोनॉटिकल फोरकास्ट। अब जो एरोनॉटिकल फोरकास्ट जो प्रोवाइड है, जो प्रोवाइड होता है एरोनॉटिकल फोरकास्ट obtained from its associated AMOs, they work under AMOs, जो एरोड्रोम मेट ऑफिस है उसके अंडर ये काम करते हैं, एंड जो उन्हें डाटा ऑब्टेन किया होता है, दे ऑब्टेन जो उसका करेक्शन जो ये अपना डाटा है, दे ऑब्टेन फ्रॉम द
एरोड्रोम ऑफिस है ना, जितना भी ड्यूरिंग देयर वॉच आवर्स टाइम, जो इनका वॉच आवर टाइम रहता है उसके बीच ये, सो आप ये समझ सकते हैं कि दे वर्क डायरेक्टली लिंक्ड विद द एएमओस, एएमओस के साथ ये मिलके अपना काम करते हैं, राइट। सो अब इसमें आप ये समझिए कि 18 टू 24 आवर प्रायर नोटिस यू नीड टू प्रिपेयर फॉर फाइलिंग योर एफपीएल। अगर आप एरोनॉटिकल मेट स्टेशन पर अपना एफपीएल फाइल कर रहे हैं तो 18 से 24 आवर्स का आपको प्रायर नोटिफिकेशन यहाँ देना जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, एक बार अगर आपको ये समझ आ गया हो अच्छे से तो मैं आपको एक बार और से क्लियर कर देता हूँ अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो। ओके, सो एक बार आप समझिए इसको, दे टेक करंट वेदर ऑब्जर्वेशन एंड प्रोवाइड एरोनॉटिकल फोरकास्ट obtained फ्रॉम इट्स एसोसिएटेड एएमओ ड्यूरिंग द वॉच आवर्स। ओके, दे टेक करंट वेदर ऑब्जर्वेशन, ये क्या करेंगे, जो कि जितने भी जो उस टाइम की जो एरोनॉटिकल स्टेशन है, जो जिस लोकेशन में ये है प्रोवाइडेड, जो 54 लोकेशन में जिस लोकेशन में भी आपका एएमएस होगा तो वहाँ की करंट ऑब्जर्वेशन लेंगे। एंड क्या प्रोवाइड करेंगे, एरोनॉटिकल फोरकास्ट ये प्रोवाइड करेंगे। जो एरोनॉटिकल फोरकास्ट ये प्रोवाइड कर रहे होंगे, दैट एरोनॉटिकल फोरकास्ट विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एएमओस, एएमओस के साथ ये लिंक होके काम करते हैं। ओके, दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद द एरोड्रोमेट ऑफिस, तो वहाँ से जो इन्हें डाटा ऑब्टेन किया क्या होगा उसके ये अपने जब वॉच आवर्स टाइम में ये वहाँ पर फोरकास्ट करेंगे। ओके, सो दे वर्क डायरेक्टली इन लिंक विद द एएमओस, और समटाइम्स एएमओस भी क्या कर लेते हैं, फोरकास्ट कवर कर लेते हैं फॉर द एसोसिएटेड एएमएस। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक जगह में एएमओ है जो हमारा एरोड्रोमेट ऑफिस है और एरोनॉटिकल मेट स्टेशन है, सो जो आपका एएमओ होगा उस स्टेशन का एरोड्रोमेट ऑफिस, दैट कैन आल्सो कवर द फोरकास्ट डाटा फॉर द एरोनॉटिकल मेट स्टेशन ऑफ द करंट स्टेशन। ओके, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली का एग्जांपल लीजिए, दिल्ली में आपका एरोड्रोमेट ऑफिस है और आपका एरोनॉटिकल मेट स्टेशन भी है, तो एड्रोमेट ऑफिस जो दिल्ली का होगा डेट कैन आल्सो कवर द डाटा फोरकास्ट ऑफ, फोरकास्ट जो होगा एएमएस का नॉटिकल मेट स्टेशन का, जो आपने एफपीएल फाइल किया होगा वहाँ पर, तो वो भी वो एड्रोमेट ऑफिस उसको कवर कर लेगा अपने अंडर, राइट। सिंपली बात में ये है। ओके, अगर वर्कलोड रहता है कई बार ऊपर नीचे इनका डिपार्टमेंटल रहता है कुछ, तो एरोड्रोमेट ऑफिस के पास ये पावर है, इट कैन ऑल्सो टेक चार्ज ऑफ द एरोनॉटिकल मेट स्टेशन, और उनका काम भी ये कर सकता है साथ में। ओके, ये कोऑर्डिनेशन होकर काम करते हैं। मोस्ट प्रायोरिटीज में यही होता है कि आपके जो एफपीएल है उसके लिए आपको जो वेदर फोरकास्ट है फॉर द फ्लाइट ऑपरेशन एयरक्राफ्ट पर्सनल्स को प्रोवाइड किया जाए इन कोऑर्डिनेशन विद इट, ये अपने कोऑर्डिनेशन करते हैं, अपने में काम करते हैं और आपको वेदर फोरकास्ट की डाटा आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर योर स्मूथ सेफ एंड एफिशिएंट फ्लाइट। ओके फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, अब थोड़ा हम फ्लाइट प्लान मेट्रोलॉजिकल ब्रीफिंग के बारे में समझ लेते हैं, हाउ इट हैपन्स, कैसे रहती है। सो इसमें आप जानेंगे कि दे आर इशूड फॉर शेड्यूल्ड फ्लाइट 3 आवर्स प्रायर टू देयर डिपार्चर। ओके, अब आप डिपार्ट कर रहे हैं तो 3 आवर्स प्रायर योर डिपार्चर, जब आप डिपार्ट करने वाले हो उससे पहले आपको, अगर आपकी शेड्यूल फ्लाइट है तो आपको मेट्रोलॉजिकल ब्रीफिंग इसमें प्रोवाइड की जाएगी। और अगर एडुकेट नोटिस नहीं गिवन है तो आपको ओरल ब्रीफिंग तो यहाँ पर ज़रूर आपको प्रोवाइड कर जाती है। स्पेशली मैंने देखा था जब हम अपनी क्रॉस कंट्री फ्लाइट कर रहे होते थे, दैट टाइम हमारे पास एडुकेट टाइम नहीं होता था। सो तो क्या करते थे वो, तो जो हमारी ब्रीफिंग होती थी, दे प्रोवाइड ओरल ब्रीफिंग टू अस रिगार्डिंग द, जो हमारा रूट फाइल है उसमें जो वेदर रहेगा, जो विंड पैटर्न्स रहेंगे, विजिबिलिटी रहेगी, एंड इफ देयर इज एनी सी वेरिएशंस आर, तो वो हमारे को ओरल ब्रीफिंग में वो कई बार एक्सप्लेन कर लेते थे। फॉर एग्जांपल अगर हमारा 3 आवर्स प्रायर हमको नहीं इन्फॉर्म करते रिगार्डिंग आवर डिपार्चर, या कुछ ऐसा रहता है सिचुएशन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, तो ओरल ब्रीफिंग हमें प्रोवाइड हो जाती थी। अदर एल्स हम अगर अच्छे से हमारी फ्लाइट प्लानिंग हो गई है जो इनका टाइम पीरियड उससे पहले एज डिफाइंड है, तो आपको एक प्रॉपर एफपीएल पे मेट्रोलॉजिकल ब्रीफिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो ब्रीफिंग में इंक्लूड क्या होता है, हमारा मेटार हम स्टडी करेंगे, मेटार रिपोर्ट्स होती है इसमें, सारा आपका विंड्स का वेदर का इसमें पूरा डाटा आपको समझ आ जाता है, यू नीड टू डिकोड इट, हम इसको अभी लेटर ऑन चैप्टर में डिकोड करेंगे। टैफ इसका थोड़ा इलेबोरेटेड वर्जन होता है, इन विच वी हैव डीप, जो हमारा मेटा का जब हम डीप एक्सप्लेनिंग करते हैं तो डैट कम ओवर टैप। स्पेकी इज अ स्पेशल रिपोर्ट। ओके, कोई स्पेशल कोई रिपोर्ट है वो इसमें होती है। एंड अपर विंड्स एंड ट्रोपोस्फोस हाइट इफ रेलिवेंट, अगर आपकी कुछ ऐसा एल्टीट्यूड है अपर विंड्स एंड ट्रोपोस का कुछ इफेक्ट आ रहा है आपकी क्रूजिंग लेवल पे, तो वो भी आपको यहाँ पर इन्फॉर्म किया जाएगा। ओके, डिपेंडिंग अपॉन योर क्रूजिंग एल्टीट्यूड, इफ अपर विंड्स एंड ट्रोपोस हाइट का कुछ रेलिवेंट्स है। ओके, सो नेक्स्ट है डिस्टेंस रूल।
रो 4 इशू होता है, रूट फोरकास्ट होता है, ये फॉर्म T3 बोलते हैं इसको। और फ्लाइट अप टू 500 नॉटिकल माइल्स के लिए ये आपको इशू किया जाएगा रो 4। एंड फॉर्म T4 होता है विच हैव ए पिक्टोरियल डिपिक्शन ऑफ रूट वेदर, है ना, पिक्टोरियल डिपिक्शन होती है इसमें रूट वेदर की। ये गिवन होती है फ्लाइट डिस्टेंस इज मोर देन योर 500 नॉटिकल माइल, लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि 500 नॉटिकल माइल से आपकी फ्लाइट ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपको ये फॉर्म T4 प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन डिपिक्शन होगी ऑफ द ओवरऑल रूट वेदर की, राइट। सो नेक्स्ट है अवर फ्लाइट टाइप रूल्स। डिपेंडिंग ऑन द फ्लाइट टाइप रूल्स, सबसे पहले आप देखिए कि हमारा जो WAC रिपोर्ट थी, हमने जो सबसे पहले समझी थी, वर्ल्ड एरिया फोरकास्ट सेंटर की जो रिपोर्ट थी, एंड सिग्निफिकेंट वेदर इज इशूड होता है फॉर द इंटरनेशनल फ्लाइट। ये जो दोनों रिपोर्ट है, WAC रिपोर्ट एंड सिग्वेस रिपोर्ट है, रिमेंबर फ्रेंड्स, इट इज इशूड फॉर योर इंटरनेशनल फ्लाइट। ये आपको रिमेंबर भी करना है और ये आपको पता भी होना चाहिए। और जो नेशनल सिग्वेस है आपका, ओके, सिग्निफिकेंट वेदर रिपोर्ट है, नेशनल सिग्निफिकेंट वेदर रिपोर्ट, ये किसके लिए इशू होगी? हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए, ओके। यू रिमेंबर इट, इन दोनों को रिमेंबर करिए, इंपॉर्टेंट है। सो इट वॉज रिगार्डिंग द ब्रीफिंग, मेट्रोलॉजिकल ब्रीफिंग। हाँ, और ये आपने और चीज़ याद रखनी है इसमें कि 3 आवर्स प्रायर आपको ये अपने डिपार्चर से पहले फाइल करना है। आपको ये इशूड हो जाएगा, राइट, फाइल नहीं करना है, करेक्शन, ये आपको इशूड हो जाएगा, राइट। सो जो मेट ब्रीफिंग है ये आपको इशू हो जाएगी। अगर आपने एडुकेट नोटिस नहीं दिया होगा तो ओरल ब्रीफिंग तो ये आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कर देंगे, ओके। 3 आवर्स प्रायर में आपको ये इन्फॉर्मेशन आपकी जो फ्लाइट की है वो आपको मिल जाएगी, राइट। ये था हमारा इन द FPL मेट्रो ब्रीफिंग। अब राइट फ्रेंड्स, तो लास्ट में हम समझ लेते हैं हमारा द ऑब्जर्वेशन टाइमिंग। जब हम जो हमारी रिपोर्ट टाइम, जो हम रिपोर्ट तैयार करेंगे, तो देर इज़ अ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टाइम फॉर इट। सो ये हमारे पहले पायलट जो बैलून हम यूज़ करते हैं फॉर आवर वेदर फोरकास्ट, सिनॉप्टिक ऑब्जर्वेशन आवर्स है एंड आवर सरफेस ऑब्जर्वेशन आवर्स है। इनके अलग अलग टाइम है, टाइम लाइन है, ये आपको याद करनी, एंड दे आर UTC, बेस्ड ऑन UTC। तो सबसे पहले जो पायलट बैलून रिलीज है, ऑब्जर्वेशन टाइम भी 000, 0600, 1200, 1800, 1800, 0600 आवर्स का इसमें गैप मिलेगा इन पायलट बैलून रिलीज, ओके। एंड सिनॉप्टिक ऑब्जर्वेशन यू हैव सिमिलरली सेम, ओके। तो पायलट बैलून और सिनॉप्टिक का तो आप देख सकते हैं सेम सिमिलर है। सरफेस ऑब्जर्वेशन में हमारी 0230, 345, 530, 0530, 678, 9, 10, 11। तो आप इसमें क्या देख सकते हैं? 2, 3, 4, 5। इसमें हम ये देख सकते हैं लास्ट में हमारा क्या है, 1, ये है हमारा 2330। इसमें देख सकते हैं 3 आवर्स का गैप हमारा रह रहा है, 3 आवर्स का गैप हमारा रह रहा है। 3 आवर्स का गैप हमारा रहता है इसमें सरफेस ऑब्जर्वेशन में, पायलट बैलून और सिनॉप्टिक में हमारा 0600 आवर्स का गैप है। एंड रिपोर्टिंग टाइम आप यहाँ से इजीली याद कर सकते हैं, पायलट और सिनॉप्टिक की 000 से स्टार्ट होगा, 1800 UTC पे जाके एंड सरफेस ऑब्जर्वेशन 0230 से आप एक बार अगर याद कर लिया आपने, आप रिमेंबर कर लीजिएगा, 0230 से स्टार्ट हो जाएगा। सो एवरी 3 आवर्स इंटरवल के बाद ये देयर विल बी ऑब्जर्वेशन इन ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस। जब हम सरफेस के ऑब्जर्व कर रहे होगे, अपना वेदर फोरकास्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस ऑब्जर्वेशन, तो हमारा 3 आवर्स का गैप रहेगा। ऑन बेसिस ऑफ पायलट बैलून एंड सिनॉप्टिक द वेदर फोरकास्ट विल बी observed our every 6 hour gap, okay। So this was brief overview and we have covered every aspect of this met services for aviation। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट चैप्टर ऑन आवर मेट्स मेट्रोलॉजिकल जो हमारी सीरीज है इसमें। सो थैंक्स गाइस फॉर जॉइनिंग एंड होप टू सी यू अगेन सून। थैंक्स।